وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. আমরা সবাই শেরশাবাদী ছেলে, মানে থাকে ওটা বুঝতে পারছি না, সবাই বুঝতে পারবো না ইনশাআল্লাহ। প্রথমে আল্লাহ তাআলা শুকর গুজার যে আল্লাহ তাআলা দিনী ছাত্রীদেরকে পছন্দ করেছেন এবং তোমাদেরকে এই মাদ্রাসার মতন আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাদ্রাসাতে ইলম শিক্ষা করার সুন্দর একটা সুযোগ পেয়েছে। আল্লাহ তাআলা সব জনকে সুযোগটা দেয় না, আল্লাহ তাআলা সব জনকে এই অপশনটা দেয় না, সবজন পারে না। কারো হয়তো মা বাবা আর্থিক অবস্থার কমার জন্য হয় না, আর কেউ পারে না, তো সবজন এই জায়গাতে এসে পৌঁছতে পারে না। আল্লাহ তাআলা আল্লাহ শুকরিয়া, আল্লাহ তাআলা সকলকে তোমাদেরকে এক জায়গাতে একজন দিনী মাদ্রাসাতে বসে হাদিস কোরআনের কথা শিখার এবং তৌফিক দান করেছেন আল্লাহ তাআলা। बेपरदा जैसा बकरियां चराती है, खेत खलिहान में घूमती रहती है, लेकिन आपको अल्लाह ने कबूल किया है और एक अच्छे जगह में मदरसे में लाकर के आपको आज जो बैठे हुए हैं, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको तौफीक दिया है, इस वजह से आप आज यहाँ बैठे हुए हैं। इसके लिए सब पहले अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आप लोगों को ये बताऊं कि आपने यहाँ जो पढ़ने के लिए आई है, तालीम हासिल करने के लिए आई है, एक बच्ची एक औरत अगर तालीम हासिल करके जाती है, दीन की तालीम हासिल करता है, कुरान हदीस की तालीम हासिल करता है, तो एक पूरे खानदान को बढ़ा सकता है, एक पूरे बस्ती को, एक इलाके को बदला सकता है। तारीख पेश की अंग्रेजी जुबान में भी, अरबी जुबान में भी और उर्दू जुबान में भी। हमारे घरों में जो ख़वातीन होती हैं, हमारी माएँ बहनें होती हैं, जब वो चावल बनाती हैं, चावल पका या नहीं, एक दाना निकाल के ऐसे दाब कर देख लेती है, तो एक दाने से पता चल जाता है कि पूरा जो है पतीले के सारे चावल पक चुके हैं। तो उसी तरह हमने 3 बच्चियां पेश कर दी हैं आपके सामने। इन 3 बच्चियों को देखकर आप 150 बच्चियों का अंदाजा लगा सकते हैं कि तकरीबन इसी तरह की तमाम बच्चियों को मशक कराई जा रही है। और इंग्लिश जुबान में, इंग्लिश में, हिंदी में और मैथ में इन बच्चियों को काबिल बनाने के लिए और हत्ता कि हमने इन साल 10वीं की भी तैयारी करा रहे हैं हम। साथ में जितने सारे लोग स्टेज पे बैठे हैं, सभी लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझे भी 2-4 बातें जो है रखने का मौका दिया गया है। बच्चियों, एक बात जो है वो जान लेनी है। क्या हो रहा है? अच्छा, एक बात यह है, इसको जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस घर में पढ़ी लिखी माँ होती है, वह घर खुद ब खुद एक स्कूल होता है। तो माँ बनने से पहले एक स्टूडेंट बनना जरूरी है। आपको एक मौका दिया गया है कि आप बेहतरीन एजुकेशन को एक्सर्ट कर रही हैं। इस मदरसे में हर तरह की तालीम, बेहतरीन तालीम आपको मुहैया कराई जा रही है। तो बच्चियों, मैं आपसे यही गुजारिश करना चाहूंगा कि दुनिया में अगर जीना है तो अनपढ़ बनकर नहीं जीना है। अंग्रेजी में कहावत है, गर्ल्स आर मोर सिंसियर देन बॉयज। और इसका सही तर्जुमा क्या है कि लड़कियां ज्यादातर मामलों में लड़कों से बेहतर होती हैं, हो सकती है। तो बड़े बड़े लोगों का यह मानना है, लबरेज घटा रहमत की उठी, बतहा की ज़मीं पे बरसी है,
جو مزرعِ انصابی راکھی وہ رب سے مسرت کرتی ہے، وہ رحمت عالم کو دامان محبت نور خدا، اے تیرا شبی زلفوں کو عطا انوار کی بارش ہوتی ہے، لبریز گھٹا رحمت کی اٹھی بطحا کی زمین پہ برسی ہے۔ آج ہوئے مہمان اور اساتذہ اکرام، بہت دن کے بعد آج موقع ملا آپ لوگوں کا مدرسہ آنے کا اور کچھ بولنے کا۔ یہاں پہ مہارتی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور جانکار لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، علماء دین ہیں، اور بچیاں جو ہے آپ لوگ علم حاصل کرنے کے لیے الگ الگ خطے سے، الگ الگ گاؤں سے آپ لوگ یہاں پہ اکٹھت ہوئے ہیں۔ میں زیادہ کچھ کہوں گا نہیں، میں اتنا ہی کہوں گا کہ آپ لوگ جہاں سے بھی آئے ہیں سب سے پہلے تو دینی تعلیم حاصل کرنی ہے۔ دنیاوی تو ہے، دنیا میں جینے کے لیے دنیاوی تعلیم بھی ضروری ہے، لیکن سب سے پہلے اخروی زندگی جو ہے، جو مرنے کے بعد ہمیشہ کام آئے، وہ تعلیم سب سے پہلے بچیوں کو ضروری ہے، ہمیں بھی ضروری ہے، اپنے سماج کے لیے بہت ضروری ہے، لیکن ہم لوگ اس میں سب سے پیچھے ہیں۔ ہم لوگ بچیوں کو مدرسہ بھیجتے ہیں پڑھنے کے لیے، لیکن جب وہ بچیاں مدرسہ سے گھر پہنچتی ہے تو پڑھائی سے بہت دور چلی جاتی ہے۔ گھر پہ وہ ماحول نہیں ہے جو بچیاں پھر دوبارہ جیسے مدرسہ میں روٹین کے حساب سے پڑھائی کرتی ہے، لیکن گھر پر جا کر وہی مویشی کھیت جانا، کھانا پہنچانا، یہی میں جو ہے بچوں کا ٹائم برباد ہو جاتا ہے، اور ہم گارجین جو ہے اس پر صحیح جو ہے بچوں پر دھیان نہیں دے پاتے ہیں، جس کارن ہمارے بچیاں اور پیچھے چلی جاتی ہیں۔ اگر وہ 1 سال مدرسہ میں رہ کے گئی، کچھ سیکھ کے گئی، اگر 3 مہینہ وہ گھر میں رہ جائے یا 1 مہینہ، وہ سارے سال بھر کی پڑھائی ختم۔ اگر پوچھا جائے تو وہ بتا نہیں پاتی ہے، کچھ باتیں جو ہے وہ زیادہ یاد رہتی ہیں، اور پڑھائی جو ہے بہت مشکل ہے یا تو بہت آسان ہے۔ اگر آپ سمجھ رہے ہیں، سمجھ کے اگر اس کو یاد رکھ رہے ہیں تو وہ آپ کو جیون بھر ہمیشہ یاد رہے گی جب تک آپ کے اندر جان ہے۔ اگر آپ رٹا مار رہے ہیں، ابھی آپ یاد کریے گا، کل رٹا ہوا چیز بول دیجئے گا، اور پوچھا جائے 2 دن کے بعد تو وہ آپ کو یاد رہنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ آپ وہ رٹے ہیں، سمجھے نہیں ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ جو بھی پڑھائی کرتے ہیں، دینی تعلیم سے ہو، دنیاوی سے ہو، آپ لوگ اس کو سمجھنے کی پریاس کریں گے، یہی میری آپ سے گزارش ہے۔ اور گھر پر بھی جائیں تو وہی چیز آپ بکس وغیرہ کو بھی لے کر گھر جائیں، وہاں بھی آپ رات میں پڑھنے کے لیے بیٹھے، دن میں موقع ملے پڑھنے کے لیے بیٹھے۔ اصل میں ہم لوگ مدرسوں میں جو پڑھتے ہیں اس کا ایک بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس مقصد کے تحت ہمیں ہمارے گارجین کو، ہمارے رشتہ داروں کو اور کائنات کے تمام انسانوں کو دنیا میں بھیجا گیا ہے، ہم اس مقصد کو پہچاننے والے ہو جائیں، اللہ کی معرفت ہمیں حاصل ہو جائے، اللہ کی رضا اور خوشنودی کیسے حاصل ہو، وہ علم ہمیں حاصل ہو جائے، اور وہ علم قرآن اور حدیث کے سیکھنے سے آئے گا، وہ علم قرآن اور حدیث کو سمجھنے سے آئے گا، وہ علم اللہ کے احکامات کو پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے سے آئے گا۔ تو علم کا اور مدرسے میں پڑھنے کا، مدرسے میں رہ کر تعلیم حاصل کرنے کا جو اصل مقصد ہے وہ اللہ کو راضی کرنا ہے،
तो ना पेंट मदरसे के बाहर में जो तालीम हासिल की जाती है और जो पढ़ना पढ़ाना होता है, कायनात से जितने उलूम हैं, जितने फनून हैं, अगर उन उलूम के जरिए भी अल्लाह तक रसाई हो रही है, अल्लाह की मारिफत हासिल हो रही है, तो वो भी इल्म नाफे है। और उस इल्म को भी हम लोग कहेंगे कि वो इल्म अल्लाह तक पहुंचाने का जरिया है। और अल्लाह ताला ने खुद कुरान में तमाम उलूम की तरफ इशारा किया है, उलूम समाविया हो, उलूम अर्जियात हो, उलूम दहरियात हो। अल्लाह ताला ने खुद इंसानों को हुक्म दिया कि गौर करो तमाम चीजों की तरफ, आसमानों की तरफ, जमीनों की तरफ, पहाड़ों की तरफ, समुद्रों की तरफ। अल्लाह ताला बहुत सी जगहों पर कुरान में दावत देता है इंसानों को सोचने की, समझने की, देखने की और कायनात पर गौर करने की। अफला यंजुरूना इलल इबिली कैफ़ खुलिक़त व इलस समाई कैफ़ रुफ़िअत व इलल जिबाली कैफ़ नुसिबत व इलल अर्ज़ि कैफ़ सुतिहत। ये तमाम अहकामात और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये इरशादात इस बात के लिए काफी है कि वो जिन उलूम के जरिए भी अल्लाह तक रसाई हो, हासिल हो, जिन उलूम के जरिए भी अल्लाह की मारिफत हासिल हो, उन उलूम की अहमियत है और उन उलूम को सीखना चाहिए। जो शरीयत का इल्म है, जो कुरान का इल्म है, जो हदीस का इल्म है, ये बुनियादी इल्म है कि इसके जरिए डायरेक्ट बराह रास्त अल्लाह की मारिफत हासिल होती है। हमारे एक दोस्त हैं जो शायर हैं, जनाब सरफराज बज़मी साहब, उनके 4 मिसरे हैं कि अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना। बाद लोगों ने अल्लामा इकबाल से मंसूब कर दिए हैं इन शेरों को, इन मिसरों को, लेकिन ये हकीकत में सरफराज बज़मी साहब जो राजस्थान के रहने वाले हैं, ये उनके अशार हैं कि अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, अमलाक भी, औलाद भी, जागीर भी फितना, और नाहक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, और शमशीर ही किया नारे तकबीर भी फितना। तो अल्लाह से करीब करने वाला जो इल्म है, हमें उस इल्म को हासिल करने की जरूरत है। वही इल्म इन मदारिस इस्लामिया के अंदर सिखाया और पढ़ाया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। आज के इस इस्तकबालिया प्रोग्राम में उपस्थित इस मदरसे के जिम्मेदारान, उपस्थित हम लोगों के गार्जियन और हमारे जो है माननीय शिक्षक गणों में जनाब रेहान आलम साहब, इबादुल्लाह सर, सभी आज उपस्थित है, और आपके जिला परिषद प्रत्याशी भी कह दीजिए, और हमारे इस इलाके में तालीमी या सामाजिक बेदारी लाने के लिए एक मुहिम के तरह हमेशा काम करने वाले हमारे आफ्ताब भाई, आप तमाम प्यारे प्यारे बच्चों को मैं आदिल रब्बानी दिल की गहराई से आज के इस इस्तकबालिया प्रोग्राम में जज्बाती होकर पूरी जो दिलो जान से जज्बात के साथ आपका इस्तकबाल करता हूँ। प्यारे बच्चों, आओ बच्चों मिलजुल कर स्कूल जाए, तालीम जरूरी है, पढ़ने में दिल लगाए। हमने कहा कि तालीम जरूरी है, पढ़ने में दिल लगाए, और हमारे इबादुल्लाह साहब ने कहा, कहने का उन्होंने कोशिश किया कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भाया ना कोई, ढाई आखर प्रेम के 100 पंडित पढ़े। क्या बात। बरका बरका किताब IAC BAC तो क्या क्या पढ़ लिया, लेकिन तालीम के साथ उनको तरबियत की कमी। आप तालीम तो हासिल करते हैं, तरबियत नहीं, वैसे तालीम की कोई कीमत नहीं होती है। वैसी तालीम कभी आपके सितारे को कभी चमका नहीं सकता है जिस तालीम के साथ तरबियत ना हो। इसलिए प्यारे बच्चों, आजकल हम लोग चूंकि स्कूली क्योंकि स्कूली पढ़ाई हम लोग किए हैं, तो ज्यादातर हम लोग उर्दू शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, अल्फाजों का, लेकिन कहा जाता है संस्कृत में, आप लोग सुनना चाहते हैं? जी जी, बढ़िया। आप लोग तो उर्दू तो इतना हम लोग सुन लिए, तो थोड़ा संस्कृत देखो। काक चेष्टा बको ध्यान। पहले के बच्चे जो होते थे उनके लिए 5 लक्षण हुआ करता था पढ़ने के लिए। काक चेष्टा बको ध्यानम सोनिंद्रा तथेचो अल्पहारी गृह त्यागी विद्यातिनम 5 लक्षणम। आप 5 ये गुण जिनके अंदर है वो अच्छा शिक्षक, अच्छा विद्यार्थी कहलाता है, तालिब इल्म कहलाता है।
काक चेष्टा, कौवे की तरह चेष्टा करना। आपने तालाब के ऊपर में उड़ती हुई चिड़िया को तो देखा होगा, जो पानी में डुबकी लगाकर मछली को पकड़ लेता है। काक चेष्टा, लगातार चेष्टा करना, कोशिश करना, बकोधियानम, बगुले की तरह ध्यान रखना, और स्वनिद्रा, एकदम नींद को पूरी तरह से गहराई से नहीं सोना, अल्पाहारी, कम खाने वाला, और गृह त्यागी, घर छोड़ने वाला। गृह त्यागी मतलब घर छोड़ने वाला। विद्यातिनम पंच लक्षणम। और आप अभी कहां है? अभी आप एक मदरसे के प्रांगण में है, और यह मदरसा इस बात की शाहिद गवाही है कि आपने गृह त्यागी करके तालीम हासिल करने के लिए छतरगाछ के इस मदरसे में आप आए हैं। क्या आए हैं कि नहीं? आप लोग बोलिएगा ना कि जी, तो बताइए। लेकिन आजकल के बच्चों का कहा जाता है कि وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقال أيضا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. تمام قسم کی حمد و ثنا بزرگی اور بڑائی اس اللہ ذات واحد کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم سب کو پیدا فرمایا. بعد و سلام نازل ہو اللہ کے تمام انبیاء و رسولوں پر، خصوصاً اللہ کے آخری رسول سرور کائنات محسن انسانیت یتیموں کے والے غلاموں کے مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. آج ہم فاطمۃ الزہرا البنات چھترگاچھ میں استقبالیہ پروگرام میں حاضر ہوئے ہیں. انتظامیہ کمیٹی کا میں تہہ دل سے ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھ جیسے کم علم طالب علم کو آپ لوگوں کے روبرو دین کی تعلیم پر کچھ بولنے کا حکم دیا اور آپ لوگوں کے پرفارمنس کو دیکھنے اور سننے کا موقع دیا. اس کے لیے میں تمام لوگوں کا ممنون و مشکور ہوں. خصوصاً عبد المنتقم صاحب، عبد الواحد صاحب اور ہمارے آفتاب بھائی صاحب، ان لوگوں کی محنت محبت کی وجہ سے میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں. پیاری بچیوں، اسلام میں تعلیم کی بڑی اہمیت ہے، اور تعلیم ہم کو صرف دنیا میں عزت پانے کے لیے نہیں بلکہ تعلیم کو اس لیے حاصل کرنا ہے کیونکہ ہمارے رب کا اور ہمارے پالنہار اللہ کا حکم ہے کہ اقرا پڑھو بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا. پیارے رسول کے پاس جب جبریل امین آئے اور سینے سے لگا کر زور سے دبایا تو پیارے رسول نے کہا انا امی، میں ان پڑھ ہوں. تو انہوں نے پھر زور سے دبایا، کہا پڑھو. تو اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ آپ پڑھیے، اور رسول کو حکم دے کر کے قیامت کی صبح تک آنے والے سارے لوگوں کو یہ پیغام ملا کہ اگر آپ دائرے اسلام میں ہیں تو آپ کو پڑھنا ہے. دنیا میں ہمیں عزت ملے، وقار ملے، ہم کو یہ نہیں دیکھنا ہے، ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے رب کا حکم ہے اس لیے ہم کو پڑھنا ہے. یہ بات ہمیں سمجھنا ہوگا. دنیا ہمیں عزت دے نہ دے، ہم کو رب کے سامنے عزت مل جائے، ہمارا اللہ ہم سے خوش ہو جائے، ہم کو یہ دیکھنا ہے. میں ساری باتیں کہنے سے پہلے 2-3 باتیں آپ لوگوں کے بارے میں جو سنا ہوں وہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بالکل کلیئر کر لیں اپنے ذہن و دماغ میں. پہلی چیز یہ پتا چل رہا ہے کہ آپ لوگ ایڈمیشن لیتی ہو اور سال کے آخر ہوتے ہوتے پڑھائی چھوڑ دیتی ہو. یہ بہت ہی افسوسناک مرحلہ ہے. میں درجہ طفلہ سے لے کر کے درجہ پنجم یا ششم تک مدرسہ دارالسلام سسوا میں پڑھا. اس کے بعد جامعہ سلفیہ بنارس میں تقریباً 8 سال پڑھا. پھر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں 10 سال پڑھا. آپ پڑھائی کے لیے جہاں داخل ہو وہاں آخر تک پڑھیں.
हाँ, अगर हायर और बेहतरीन दरसगाह मिले जहां आपको यकीन हो बिल्कुल कि मैं जहां तालीम हासिल करती हूँ इससे बेहतर तालीम वहां मिलेगी, तब एक तरह से सोचा जा सकता है कि ठीक है, अच्छा बहाना है, आप अच्छे इदारे में जाएं। लेकिन ये सुनने में मिलता है कि बच्चियां पढ़ाई ही छोड़ देती हैं। बाद चीजें ये पता चली हैं कि सिर्फ शादी के लिए दाखिला लेते हैं। तो मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैंने अब्दुल भाई को बात कहा कि चलो कम से कम इसी बहाने बच्चियां मदरसे में आकर कुछ तो दुआ या कुछ इबादत की चीजें या कुछ बुनियादी चीजें सीख लेती हैं। ये बड़ी खुशी की बात है। लेकिन आप ये बात ज़हन नशीन रखें कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद अहादीस को सबसे ज्यादा रवायत करने वाली अगर कोई इस दुनिया में थी तो वो हम सब की मां हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थी। वो सहाबा किराम के बीच में अल्लामा के मकाम पर फाइज थे। अक्सर फतावे वो दिया करते थे और आपको हैरानी होगी कि इस दुनिया में, बल्कि इस्लामी दुनिया में अगर देखा जाए तो सबसे पहले यूनिवर्सिटी का कयाम अगर किसी ने किया तो आपके स्कूल के नाम की एक खातून फातिमा ने किया। उनका फातिमा के आगे कुछ और लगता है, उन्होंने यूनिवर्सिटी का कयाम किया। तो आप लोग तालीम हासिल करो सिर्फ शादी करने के लिए नहीं, बल्कि तालीम हासिल करना है हमको सीखने के लिए, समझने के लिए। एक और समाजी बात मुझे पता चली कि बच्चियां पढ़ने के बाद मजीद बद अखलाक हो जाती हैं। ये बहुत भयानक शिकायत है। हालांकि तालीम और ताल्लुम ऐसी चीज है जो हमारे अखलाक को और बेहतर बनाती है। कहते हैं कि फलदार दरख्त जो होता है वो लचक उसके अंदर आ जाती है। अगर वही दरख्त के अंदर सख्ती आ जाए तो डाली टूट जाती है। टूटती है कि नहीं टूटती? तो ऐसे ही अगर हम समर आवर हैं, हमारे पास तालीमी जेवर आ रहा है, हम तालीम हासिल कर रहे हैं, तो हमारे अंदर लचक आए। किस बात की? गुरूर नहीं होगा, घमंड नहीं होगा, हम अखलाक से पेश आएंगे। हम सब के आइडियल, चाहे वो खवातीन हो चाहे वो मर्द हो, हम सब के आइडियल कौन है? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनका अखलाक, उनका किरदार, उनकी सीरत, उनका कैरेक्टर, उनकी जिंदगी, उनके मसाइल, उनके मामलात, उनके ताल्लुकात कैसे थे, इसको हमको और आपको उनसे सीखना है। अगर हम दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं तो दीनी तालीम हासिल करने का ये सबसे बड़ा फायदा होना चाहिए कि हमारा अखलाक और मिसाली हो जाए। अगर ये शिकायत समाज और माशरे में फैली हुई है कि निसाओं में पढ़ने वाली बच्चियां मजीद बद अखलाक हो जाती हैं या एजुकेशन हासिल करने वाली बच्चियां मजीद बद अखलाक हो जाती हैं, इससे बेहतर है कि कोई जाहिल बच्ची मिल जाए। तो ये बहुत बड़ा धब्बा है तालीम के नाम पर और मुस्लिम माशरे के समाज पर कि हमारी बच्चियां जिनका अखलाक, जिनका कैरेक्टर, मैं कुछ अहम चीजें बताने वाला हूँ, आप लोग बगौर सुनो। मैं बैठकर इसलिए बोल रहा हूँ कि कुछ नोट्स मैंने तैयार किए हैं। स्टेज है, मैं हाथ में मोबाइल लेकर बोलना नहीं चाहता था। तो इस बात का बिल्कुल आप लोग अज़्म मुसम्मम करें। जैसे अभी आप लोगों ने जिम्मेदारी ली कि अम्मा के चेहरे पर मुस्कान आएगा, हम सब जिम्मेदारी लें, हम सब जिम्मेदारी लें कि हमारा अखलाक और किरदार इतना शानदार होगा कि पड़ोस में रहने वाले लोग ये मिसाल देंगे कि फला को देखो, रजिया को फला को देखो, जेबा को फला को देखो, रुकैया को कि ये निस्वा में पढ़ रही है, इसका अखलाक कैसा है, और उसको देखो जो कॉलेज में पढ़ रही है, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है, उसका अखलाक कैसा है। मुआवजा अगर करना है, अगर हम तालीम याफ्ता और गैर तालीम याफ्ता में गैर तालीम याफ्ता अच्छे नजर आए और तालीम याफ्ता बदखुल्क नजर आए तो इससे बड़ा बदनामी का मामला और कुछ नहीं हो सकता। आज आप लोग अपने इस इस्तकबालिया प्रोग्राम में दिलो दिमाग में बैठा लें कि आज के बाद से इस कलंक को हमको खुद साफ करना है, दूसरा कोई साफ करने वाला नहीं, हमको खुद साफ करना है। और मैं कोशिश करूंगा कि आपके इस इलाके में बिहार के जिस भी निस्वा में जाने का मौका मुझे मिलेगा कि जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं ये सारी बातें उनके सामने रखने की कोशिश करूंगा। हमारे वक्ता जो भी बयान कर रहे थे, 2-3 बातें इनकी मैंने ली हैं। तो पहली बात तो मैंने बता दी कि तालीम ये रब का हुक्म है, इनको इनकी जिम्मेदारी करनी करेंगे, इनकी जिम्मेदारी रब हम इसलिए हासिल करेंगे। ये रोजा रखना है, अगर कोई रोजा इसलिए कि मेरी बॉडी अच्छी हो जाए, मेरा जिस्म अच्छा हो जाए, मोटापा मेरा कम हो जाए, मेरी चर्बी कम हो जाए, अगर इस मकसद से रोजा रखता है तो वो जर्रा बराबर भी नहीं।
अगर कोई नमाज नहीं पढ़ता 5 वक्त ताकि उसके प्रैक्टिस ताकि बीमारी ना हो, नहीं पढ़ता है ये से नमाज पढ़ती है तो कोई नहीं रखिए दुनिया में रब की मर्द की प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान मुस्लिम इल्म वाजिब और जरूरी अब्दुल मतीन रहमतुल्लाह अलैह तो मैं सरसैयद सानी कहता हूं। और यहाँ के सीमांचल के इलाके में जिसे अब तालीम के खुदा ने मेहनत की काबिल मारक अल्लाह जन्नत नसीब फरमाए। और आप सब लोग इंतजाम कमेटी अपने नाजिम अपने असातिज़ा के शुक्रगुजार बने कि उन्होंने आपको दीनी तालीम हासिल करने के लिए ये बेहतरीन मौका दिया। ये खुशी की बात और है कि आप लोगों को न सिर्फ दीनी तालीम बल्कि दुनियावी तालीम भी हासिल करने का मौका दिया जाता है। ये बड़ी खुशी की बात है। कम से कम हमारी बच्चियां अपने इदारे में अपने 4 दीवारी में रहकर दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम हासिल कर लेती है, ये बड़ी अच्छी चीज है। लेकिन हमारा मकसद दीनी तालीम छोड़ का अपने रब की रजा और रब की मंशा होनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक मौके पर इरशाद फरमाया यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। 2 लोग अल्लाह ताला के पास सबसे वीआईपी रुतबा पाएंगे, सबसे वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, सबसे बेहतरीन लोग 2 लोग होंगे। नंबर 1 अहले ईमान, हम मुसलमान, और नंबर 2 वो लोग जो तालीम हासिल किए हैं। तो इससे अंदाजा करें कि हम और आप अगर समाज में पढ़ाई लिखाई पर मेहनत करेंगे, अपने आप को तालीम के जेवर से आरास्ता करेंगे, दीनी तालीम हासिल करेंगे तो न सिर्फ दुनिया में इज्जत मिलेगी बल्कि मरने के बाद क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन वीआईपी दर्जा हमको और आपको अता फरमाएगा। कई मिनट बोलना शेख और 2-4 मिनट। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामा। ये कुरान जो आपके में अल्लाह कहते हैं कि इस किताब बहुत सी कौमों को उठा देता है। आज समाज और माशरे में कितने ऐसे बददीन लोग हैं जो कुरान की तालीम पर चलते हैं, जो मदरसे की तालीम पर चलते हैं। आज बहुत सारे ऐसे नाम नेहाद मक्कार किस्म के मुस्लिम दानिशवर मौजूद हैं जो आपके पर्दे को ताना और मलऊन समझते हैं, वो इसको लानत का जरिया समझते हैं, वो तरक्की में रुकावट का जरिया समझते हैं। हालांकि वो बदवक्त बोल गए कि हम अपनी बच्चियों को दुनिया के ज़ेब और ज़ीनत के लिए नहीं पढ़ाते, हम अपनी बच्चियों को दुनिया परस्तों और हवा परस्तों के हवाले करना नहीं चाहते, बल्कि इनको 4 दीवारी में रखकर इनके अखलाक और किरदार को डेवलप करके इनकी शादी ब्याह तक अच्छी तरबियत करके ये समाज और माशरे में अच्छी खातून बने, मशरकी खातून बने। इस मकसद के खातिर आपको 4 दीवारी में रखा जाता है ताकि आप तालीम हासिल करें और अपने घर और दौलत खाने को तरक्की अता फरमाएं। ये कुरान ये रब का कलाम है। इस कलाम से अल्लाह ताला ने कितनी कौमों को बुलंद किया। आज हम सहाबा किराम की तारीफ करते हुए नहीं थकते हैं और तारीफ करना ही होगा, क्योंकि रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया कि बहुत मशहूर आयत है सूरह बकरा आयत नंबर 137 कि फ़इन आमनू बिमिस्ली मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने प्यारे रसूल के ऊपर कुरान की आयत नाज़िल की और कहा है रसूल आप लोगों से कह दो फ़इन आमनू, अगर ईमान लाओगे कैसे, वैसे जैसे सहाबा ईमान लाए फ़क़द इह्तदौ, तब कामयाब होगे। यानी सहाबा तरक्की के मेयार में अव्वलीन सफ में शामिल है। अगर हम तरक्की पाना चाहते हैं दुनिया में आखिरत में तो सहाबा किराम के नक्शे कदम पर चलना पड़ेगा। वो सहाबा कौन थे जो तालीम दीन की तालीम के खातिर उन्होंने कुर्बानियां दी। आज कितने बच्चे ऐसे हैं घरों के जो अच्छा खाना ना मिलने की वजह से पढ़ाई छोड़ देते हैं, चावल में कीड़ा निकल गया पढ़ाई छोड़ देते हैं, प्लेट में गंदगी आ गई पढ़ाई छोड़ देते। मेरे भाइयों और मेरी मिल्लत की प्यारी बच्चियों गौर से सुनो, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो सबसे ज्यादा हदीस की रवायत करने वाले, जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये मलका दिया कि सबसे ज्यादा प्यारे रसूल की अहादीस को याद किया और उसे रवायत की। जब वो तालीम हासिल करने के लिए सुफ़ा में होते थे, असहाबे सुफ़ा में शामिल थे, भूख की वजह से बीमार होकर गिर पड़ते थे। लोगों को लगता था कि मिर्गी का दौरा पड़ा है। अब वो कहते थे कि नहीं, बल्कि पेट में कुछ होता नहीं था, मैं भूख से गिर जाया करता था, बेहोश हो जाता था। लोग ये समझते थे कि नहीं मिर्गी का दौरा पड़ा है। तालीम हासिल करने का जज्बा वहां से सीखिए। हम खाने के लिए नहीं हाजिर हुए,
हमें खाना मुंतजमा कमेटी दे, अगर फीस लेती है, अगर हमसे ये चीजें ली जाती हैं तो इनकी जिम्मेदारी है, लेकिन तालीम को कभी आप खाने की वजह से मत छोड़िए। अपना वाकया बताऊं, जामिया सल्फिया बनारस में हम लोग दर्जा 6 से लेकर के आलिम सानी तक हमने पढ़ाई की, यानी आलमियत तक। नाश्ते का टाइम होता था 9 बजे, चना मिलता था, आपके यहाँ भी चना मिलता है। इस चना से मुझे फौरन जामिया सल्फिया की याद आई। चना आपको कम से कम भूजा मिलता है, क्या कहते हैं उसको, बनाकर मिलता है, मूढ़ी मिलती है अपने साथ, मूढ़ी अपने से लाते, मतलब घर से आपको खुद लाना पड़ता है। चना सिर्फ मिलता था हम लोगों को। आपके चना में तो कुछ मसाला भी होता है, हम लोगों का चना बिल्कुल सूखा रहता था। काउंट में मिलता था, 12 लोग रूम में रहते हैं, थोड़ा सा चना आता था। उस चना को खाने के बाद जोहर तक क्लास करना, और जब भूख लगती थी आंखों से आंसू गिर जाते थे, इतनी भयानक भूख लगती थी, लेकिन हमने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाई नहीं छोड़ा। और वहीं जब अलीगढ़ में हम पढ़ने आए तो बाद बच्चों के बारे में पता चला कि वो अपने बच्चों को मदरसा भेजे, अपनी बच्चियों को मदरसा भेजा, वापस बुला लिया। क्यों? क्योंकि सही खाना नहीं मिलता था। आज अलीगढ़ में कोई आलिम नहीं है, ये अलीगढ़ का वाकया बता रहा हूं। अलीगढ़ में अहले हदीस का कोई आलिम नहीं पैदा हुआ आज तक। जब इस अंदाज से आप बच्चों को तालीम के लिए तैयार करेंगे तो बच्चे कहां जाएंगे, कहां जाएंगे? तो मेरी प्यारी बच्चियों, इस्लामी और मिल्लत की बहनों, ये बातें हुई दीनी एतबार से। आओ दुनियावी एतबार से कुछ चीजें बता दूं। तालीम के बारे में नेल्सन मंडेला, अफ्रीका के सबसे पहले वजीर आजम और अफ्रीका के गांधी भी उन्हें कहा जाता है, वो कहते हैं कि एजुकेशन ये सबसे पावरफुल हथियार है। यही वो चीज है जिससे दुनिया को बदला जा सकता है। तालीम ये सबसे ताकतवर हथियार है, और यही हथियार है जिससे आप अपने कौम को, अपने महल्ले को, अपने बस्ती को, अपने गांव को की जिहालत को बदल सकते हैं। यही तालीम, तालीम के अलावा कोई हथियार नहीं है जिसे बदला। महात्मा गांधी क्या कहते हैं? महात्मा गांधी कहते हैं कि अगर आपको सिर्फ जीना है, जिंदगी जीना है, तो इस अंदाज से जियो कि कल मरना है। और इस्लाम में क्या है? आप जो सजदा कर रहे हो उस सजदे को आखिरी सजदा समझो, उस सजदे को आखिरी सजदा समझो। गांधी जी कहते हैं कि जियो ऐसे कि जैसे कल ही आपको मरना है, और सीखो ऐसे जैसे कभी मरना ही नहीं। क्या समझे? तालीम, पढ़ना, सीखना इतना जबरदस्त जज्बा हो कि उसमें ये डर और खौफ ना आए कि मैं मर जाऊंगी, मेरा क्या होगा। नहीं, ऐसा पढ़ो कि हमेशा जिंदा रहना है। महावीर अल्लाह जी कहते हैं, गांधी जी का दूसरा कोट है, कहते हैं कि तालीम एक ऐसा जेवर है कि जो इंसान के माइंड को, बच्चे और इंसान के माइंड को, आदमी को, बॉडी को, जिस्म को, माइंड को और रूह को सबसे ज्यादा बेहतर बनाती है। क्या? तालीम। जवाहरलाल नेहरू एजुकेशन डे उन्हीं के नाम पे गालिबन मनाया जाता है, या मौलाना अबुल कलाम आजाद के नाम पे चिल्ड्रंस डे उनके नाम पे मनाया जाता है। क्या कहते हैं जवाहरलाल नेहरू? जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि एजुकेशन, चिल्ड्रेन आर लाइक बर्ड्स, बच्चे जो हैं ये छोटे छोटे परिंदों के मानंद हैं। यहाँ के नाजिम और मुंतजमीन के नाम पर ये कि बच्चे छोटे छोटे परिंदों के मानंद हैं, जैसे बाग में छोटे छोटे परिंदे रहते हैं, और चाहिए कि इनके ऊपर भरपूर तवज्जो दिया जाए, इनके जीने का फितरी तौर पर इनको कैसे जिलाया जाए, कैसे इनको इनकी परवरिश की जाए। और ये भी याद रखिए, यही लोग फ्यूचर है कौम का, यही लोग कौम का फ्यूचर है, और यही मुल्क को चलाने वाले सिटीजन हैं। तो ओनली थ्रू द राइट एजुकेशन हम बेहतरीन तालीम ही के जरिया से अच्छे समाज को डेवलप कर सकते हैं। अच्छे समाज को अगर हम डेवलप कर सकते हैं तो सिर्फ तालीम के जरिया से। मौलाना आजाद रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, तालीम की बात हो, मौलाना आजाद का नाम ना आए तो इससे समझिए कि ऐसी महफिलें अधूरी हैं कि मौलाना आजाद को जो भूल जाए। पहले एजुकेशन मिनिस्टर, इंडिया के सबसे पहले वजीर तालीम मौलाना आजाद क्या कहते हैं? द वेल्थ ऑफ द नेशन वाज नॉट इन द कंट्रीज बैंक। दौलतो सरवत या मालो दौलत जो है ये मुल्क के बैंकों में नहीं है। कहां पे है? प्राइमरी स्कूलों में। मुल्क की दौलत बैंक में नहीं है। कहां पे है? प्राइमरी छोटे छोटे बच्चों के स्कूलों में। यही मुल्क की दौलत है। और बारे में आप बता दूं कि मुसलमान तालीम के कहां पे है। सच्चा रिपोर्ट है 45 से लेकर के 6 तक
सारे लोगों को ये लगता था कि मुसलमान सब मदरसे सच्चर कमेटी ने पास किया, और ना सिर्फ हिंदू मुसलमान सब ये जानते हैं कि सारे बच्चे मुसलमानों। सच्चर कमेटी ने कहा नहीं, सिर्फ 4% पढ़ते हैं। कितने? सिर्फ 4% बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं। 96% बच्चे कहां पढ़ते हैं? स्कूलों और कॉलेजों में। या तो पढ़ते ही नहीं है, पढ़ाई का रेशियो हमारा अभी 68% है मुसलमानों का, और हिंदुओं का 78% है। जो बच्चे 96% बच्चे स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ते हैं, वो हायर एजुकेशन यानी 12वीं के ऊपर सिर्फ 3% जाते हैं, 6%। 12वीं के ऊपर सिर्फ 6%, और बीए के बाद एमए या पीएचडी करते हैं सिर्फ 3%। लेकिन असली तालीम हासिल करने वाले लोग पूरा जोर अपना पर डालती है, मदरसे वाले नहीं पढ़ पाते, ये मदरसे वाले नहीं। आप लोग यहाँ से निकलते ये करते हैं, एजुकेशन तक पहुंचते ही नहीं, 10वीं के नीचे ही अक्सर रह जाते हैं। और ये भी जान लें कि मुसलमान एससी और एसटी से भी जिहालत में पीछे हैं। मुसलमानों का रेशियो 3 साल से लेकर 35 साल की उम्र तक, गौर करिएगा, 3 साल से लेकर 35 साल की उम्र तक मुसलमान बच्चे जो सबसे ज्यादा, वो कभी स्कूल ही नहीं जाते। कितने फीसद है पता है? 17%। 17% मुस्लिम बच्चे 10 साल क्या कहते हैं, उम्र 3 साल से लेकर 35 साल तक इन्होंने स्कूल का मुंह ही नहीं देखा। 17% ऐसे बच्चे हैं समाज में। शुक्रिया अदा करता हूँ। शेख जनाब अब्दुल करीम अली साहब को मैंने परसों रोज मैंने फोन किया कि शेख मदरसा में मैंने एक छोटे से प्रोग्राम रखा है, शेख आपको शेख का शेख ने मेरे लिए फोन पर शेख ने लब्बाई का अल्हम्दुलिल्लाह में हमारे सामने मौजूद है। मैं जनाब आदिल रब्बानी साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ। मैंने कहा कि मामा मदरसा में हमने एक छोटी सी प्रोग्राम रखी है, आप हमारे प्रोग्राम में शिरकत करें। तो मामा ने भी लब्बाई का, और मामा आज हमारे अजीजा बच्चिया आज जो हमारे जितने भी मेहमान आए हुए, आप तमाम लोगों के सामने जो कीमती बात रखी, रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि रब्बुल आलमीन हम सबको सुनकर इन तमाम बातों पर आसान करने की तौफीक अता फरमाए।